اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ روزہ، ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ مسلمان بھائیوں، دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے روزہ ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سہواز سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی شروع سے سبھی پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہے سب اسی طرح روزے رکھتی تھی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے حکم اور روزے کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذہبوں میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن سورہ 2 بقرہ آیت 183۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ غور کیجئے کہ آخر روزے میں کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے۔ زندگی کا مقصد، رب کی بندگی۔ اس سے پہلے کئی بار آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک پل کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس کام میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے اس طرح بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا۔ اور میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ قرآن سورہ 51 زاریات آیت 56 کا منشا پورا ہو گیا۔ عبادتیں، بندگی کی تربیت۔ یہ بات بھی اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہے ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سال میں ایک بار زکوٰۃ اور زندگی میں ایک بار حج ادا کر لیا تو اللہ کا جو کچھ حق آپ پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہے کرتے پھرے۔ بلکہ اصل میں ان عبادتوں کو فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ پوشیدہ عبادت ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں وہ ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم سے کم ایک آدمی دیتا ہے اور دوسرا آدمی لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھیے، پھر غور کیجئے کہ جو آدمی حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹکا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، سخت بھوک کی حالت میں جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت
चाहे सारी दुनिया से छिप जाए मगर अल्लाह से नहीं छिप सकती। कैसा खुदा का खौफ उसके दिल में है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाता है मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके रोजे को तोड़ने वाला हो। कितना मजबूत यकीन है उसको आखिरत की जज़ा व सज़ा पर कि महीने भर में वह कम से कम 360 घंटे के रोजे रखता है और इस दौरान में कभी 1 मिनट के लिए भी उसके दिल में आखिरत के बारे में कोई जरा सा शक भी नहीं होता। अगर उसे इस बात में जरा सा भी शक होता कि आखिरत होगी या ना होगी और उसमें अजाब व सवाब होगा या ना होगा तो वह कभी अपना रोजा पूरा नहीं कर सकता था। शक हो जाने के बाद यह मुमकिन नहीं है कि आदमी खुदा के हुक्म को पूरा करने में कुछ ना खाने और पीने के इरादे पर कायम रह जाए। 1 महीने की लगातार ट्रेनिंग। इस तरह अल्लाह ताला हर साल पूरे 1 महीने तक मुसलमान के ईमान को लगातार आजमाइश में डालता है और इस आजमाइश में जितना जितना आदमी पूरा उतरता जाता है उतना ही उसका ईमान मजबूत होता जाता है। यह मानो आजमाइश की आजमाइश है और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। आप जब किसी आदमी के पास अमानत रखवाते हैं तो मानो उसकी ईमानदारी की आजमाइश करते हैं। अगर वह इस आजमाइश में पूरा उतरे और अमानत में खयानत ना करे तो उसके अंदर अमानतों का बोझ संभालने की और ज्यादा ताकत पैदा हो जाती है और वह ज्यादा अमानतदार बनता चला जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी लगातार 1 महीने तक रोजाना 12-12, 14-14 घंटों तक आपके ईमान को कड़ी आजमाइश में डालता है और जब इस आजमाइश में आप पूरे उतरते हैं तो आपके अंदर इस बात की और ज्यादा काबिलियत पैदा होने लगती है कि अल्लाह से डरकर दूसरे गुनाहों से भी परहेज करे। अल्लाह को आलिमुल गैब, गैब का जानने वाला जानकर चोरी छिपे भी उसके कानून को तोड़ने से बचे और हर मौके पर कयामत का वह दिन आपको याद आ जाया करे जब सब कुछ खुल जाएगा और बिना किसी रू रियायत के भलाई का भला और बुराई का बुरा बदला मिलेगा। यही मतलब है इस आयत का। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों के मानने वालों पर फर्ज किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम में परहेजगारी की शिफत पैदा होगी। कुरान सूरा 2 बकरा आयत 183। इताअत की लंबी मश्क। रोजे की एक दूसरी खूबी भी है और वह ये है कि यह एक लंबी मुद्दत तक शरीयत के हुक्मों की लगातार इताअत कराता है। नमाज की मुद्दत एक वक्त में कुछ मिनट से ज्यादा नहीं होती। ज़कात देने का वक्त साल भर में सिर्फ एक बार आता है। हज में अलबत्ता लंबी मुद्दत लगती है मगर इसका मौका जिंदगी भर में एक बार आता है और वह भी सबके लिए नहीं। इन सब के बरखिलाफ रोज़ा हर साल पूरे महीने तक दिन रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लाई गई शरीयत की पैरवी की मश्क कराता है। सुबह सहरी के लिए उठो, ठीक फला वक्त पर खाना पीना सब बंद कर दो, फिर दिन भर फला फला काम कर सकते हो और फला फला नहीं कर सकते। शाम को ठीक फला वक्त पर इफ्तार करो, फिर खाना खाकर आराम कर लो, फिर तरावी के लिए दौड़ो। इस तरह हर साल पूरे महीने भर सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मुसलमान को लगातार फौजी सिपाहियों की तरह पूरे कायदे और कानून में बांध कर रखा जाता है और फिर 11 महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है ताकि जो तरबियत इस 1 महीने में उसने हासिल की है उसके असरात जाहिर हो और जो कमी पाई जाए वह फिर दूसरे साल की ट्रेनिंग में पूरी की जाए। तरबियत के लिए साजगार इज्तिमाई माहौल। इस तरह की ट्रेनिंग के लिए एक एक शख्स को अलग अलग लेकर तैयार करना किसी तरह मुनासिब नहीं होगा। फौज में भी आप देखते हैं कि एक एक शख्स को अलग अलग परेड नहीं कराई जाती बल्कि पूरी फौज की फौज एक साथ परेड करती है। सबको एक वक्त एक बिगुल की आवाज पर उठना और एक बिगुल की आवाज पर काम करना होता है ताकि उनमें जमात बनकर एक साथ काम करने की आदत हो और इसके साथ ही वे सब एक दूसरे की ट्रेनिंग में मददगार भी हो। यानी एक शख्स की ट्रेनिंग में जो कुछ कमी रह जाए उसकी कमी को दूसरा और दूसरे की कमी को तीसरा पूरा कर दे। इसी तरह इस्लाम में भी रमजान का महीना रोजे की इबादत के लिए खास किया गया और सारे मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि एक वक्त में सब के सब मिलकर रोजे रखें। इस हुक्म ने इनफरादी व्यक्तिगत इबादत को इज्तिमाई सामूहिक इबादत बना दिया। जिस तरह एक ही संख्या को लाख से गुणा करो तो लाख की जबरदस्त संख्या बन जाती है, उसी तरह एक आदमी के रोजे रखने से जो अखलाकी और रूहानी फायदे हो सकते हैं लाखों करोड़ों आदमियों के मिलकर रोजे रखने से वे लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं। रमजान का महीना पूरी फिजा को नेकी और परहेजगारी की रूह से भर देता है। पूरी कौम में मानो तकवा की खेती हरी भरी हो जाती है। हर शख्स न सिर्फ खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करता है बल्कि अगर उसमें कोई कमजोरी होती है तो उसके बहुत से भाई जो उसी की तरह रोजेदार हैं उसके मददगार बन जाते हैं। हर आदमी को रोजा रखकर गुनाह करते हुए शर्म आती है और हर एक के दिल में खुद ही यह ख्वाहिश उभरती है कि कुछ भलाई के काम करे।
किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाए, किसी दुखी की मदद करे, किसी जगह अगर कोई नेक काम हो रहा हो तो उसमें हिस्सा ले, और अगर कहीं खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही हो तो उसे रोके। नेकी और तकवा का एक आम माहौल पैदा हो जाता है और भलाइयों के फलने फूलने का मौसम आ जाता है। जिस तरह आप देखते हैं कि हर फसल अपना मौसम आने पर खूब फलती फूलती है और हर तरफ खेतों पर छाई हुई नजर आती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हर अमल खुदा के यहाँ कुछ न कुछ बढ़ता है। एक नेकी 10 गुनी से 700 गुनी तक फलती फूलती है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे इससे अलग हैं, वह खास मेरे लिए है और मैं उसका जितना चाहता हूँ बदला देता हूँ। हदीस बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा। इस हदीस से मालूम हुआ कि नेकी करने वाले की नीयत और नेकी के नतीजे के लिहाज से सारे अमाल फलते फूलते हैं और उनकी तरक्की के लिए एक हद तय है, लेकिन रोजे की तरक्की के लिए कोई हद नहीं। रमजान चूंकि नेकी और भलाई के फलने फूलने का मौसम है और इस मौसम में एक शख्स नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मुसलमान मिलकर इस नेकी के बाग को पानी देते हैं, इसीलिए यह बेहद व बेहिसाब बढ़ सकता है। जितनी ज्यादा नेक नियति के साथ इस महीने में अमल करेंगे, जिस कदर ज्यादा बरकतों से खुद फायदा उठाएंगे और अपने दूसरे भाइयों को फायदा पहुंचाएंगे, और फिर जिस कदर ज्यादा इस महीने के असरात बाद के 11 महीनों में बाकी रखेंगे, उतनी ही यह फूले फलेगा और इसके फूलने फलने की कोई हद नहीं है। आप खुद अपने अमल से इसको महदूद कर ले तो यह आपका अपना कसूर है। इबादत के नतीजे अब कहाँ हैं? रोजे की असरात और ये नतीजे सुनकर आप में से हर आदमी के दिल में यह सवाल पैदा होगा कि ये असरात आज कहाँ हैं? हम रोजे भी रखते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं, मगर ये नतीजे जो तुम बयान करते हो जाहिर नहीं होते। इसकी एक वजह तो मैं आपसे पहले बयान कर चुका हूँ, और वह ये है कि इस्लाम को अलग अलग हिस्सों में कर देने के बाद और बहुत सी नई चीजें मिला देने के बाद आप उन नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो पूरे निज़ाम की बंदी हुई सूरत ही में जाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि इबादतों के बारे में आपके सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया है। अब आप यह समझने लगे हैं कि सिर्फ सुबह से शाम तक कुछ ना खाने पीने का नाम इबादत है, और जब यह काम आपने कर लिया तो इबादत पूरी हो गई। इसी तरह दूसरी इबादतों की भी सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल को आप इबादत समझते हैं, और इबादत की असली रूह जो आपके हर अमल में होनी चाहिए उससे आमतौर पर आपके 99% बल्कि इससे भी ज्यादा आदमी गाफिल है। इसी वजह से ये इबादतें अपने पूरे फायदे नहीं दिखाती, क्योंकि इस्लाम में तो नियत और फहम और समझबूझ ही पर सब कुछ मुनसिर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले खुतबे में इस मजमून की पूरी तशरीह करूँगा।